Good morning, Jai Shri Krishna. Today we are going to learn the first chapter of accounting, that is accounting and its terminology. Here we talk about the accounting only, that's why the name accounting is written. Terminology, when it will come, we will learn. Okay. As far as accounting is concerned, before accounting, we need to understand about the human, something about the human, how human used to do the transactions, how they evolved, this and all things. As we already learned in the economics also, human being is very much different from the others. Human being has its own intellectual. We have knowledge. We can transfer it. We have skills. We learn a lot of things. We produce a lot of goods, and we do the transactions. We give goods so that we can take the goods from others, so that we can satisfy our wants. So basically, in the ancient time also, everybody has got his or her skill. And that skill is used to transfer and to take other goods. Suppose I can produce wheat, I will give wheat to you, and in return I will take milk from you. Suppose you are a milkman, so I will take milk from you and I will give wheat to you. So this way transaction used to happen. That type of transaction is basically called barter system. I think you have heard the name barter system. Barter system is a system in which goods are transferred with goods to satisfy the wants. So earlier people used to produce certain goods, they transfer it and take the goods from others to satisfy their wants. But barter system also has its own limitations. As economic activity increases, as we used to produce more and more goods, our wants increases, our needs increases. So it becomes difficult for us to make the transaction in barter system. So there comes the money. Money is something which is acceptable by all as a medium of exchange. That tool or that medium is basically called money. So money was very widely used. It acts as a medium of exchange. That means now you can buy anything and sell anything in money. Suppose I want to sell my goods, sell your goods, take the money, use that money to buy other goods. So money acts as a medium of exchange. Because of money, the economic activity boosts up. And lots of economic activity increases. So we will look into the money later on. Then comes money. Whatever the transaction, earlier we used to make the transaction, we take the goods and give the goods. That's called barter system. But any transaction which is done in money is called monetary transactions. You buy goods and pay in money. It's called monetary transactions. Or make payment to somebody for their service. It's called monetary transactions. So gradually, because of money, the monetary transaction increases. As far as in ancient era is concerned, sir, do we prepare accounts in the ancient era? Definitely. Even 2500 years or maybe more than that, we used to prepare accounts. But the accounts are very much different because at that time money was not there. So it is very difficult to maintain the account. But they used to make the accounts, no doubt about that. Most of the accounts are written in the form of commodities. Not in money or in figures. So as far as like any other profession, accounting also developed. It also, there's a physics, science. Gradually new things are added, new principles are added in science, and science evolved. Similarly, accounts also, new rules, new principles, new understanding by the people. They put their understanding in it and it developed. And the accounting which we see now is is an essence of all the. For so many years we used to make changes in that, we make new rules, new principles, and because of that, the accounting which you see today is now. As far as Indian thoughts is concerned, in the ancient era, we used to give credit for the account to the Chanakya. Chanakya or Kautilya. Chanakya has written in his book Arthashastra. In his book he mentioned about how to maintain the account, how to prepare the accounts. So we used to give credit to the Chanakya. As far as Western thought is concerned, Luca Pacioli. Actually Pacioli is, Pacioli. So Luca Pacioli, So Luca Pacioli is the guy, Italian guy who was given credit by the Westerner for accounting. What will be the fellow? Indian Chanakya. And Western, they give credit for the accounts to Luca Pacioli. Now, let's move on. Why accounting developed in the last few years?
last few centuries, the account developed rapidly. It is just because of industrial revolution. You know, industrial revolution, it begins with the industries, more and more industries, mechanized work, new machines are introduced. It is basically after 1750, okay, which began in England. So इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1750 के बाद, उसके बाद से अकाउंटिंग में जबरदस्त चेंजेस हुआ, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे होने लगा, एंड डेफिनेटली वी नीड a system, okay, of maintaining accounts which is productive enough to maintain the records of such a big transactions. इसलिए उसमें काफी हद तक चेंजेस आए. देन जब हम अकाउंट की बात करते हैं, ओके, तो हमारे दिमाग में कहते हैं अकाउंट्स मीन्स तुम्हारी इनकम, तुम्हारे खर्चे, ओके. So when you maintain the records of your income and expenses, basically we call it as an account. Okay, we find the difference. आपकी इनकम आई, आप उसमें से आपने अपने खर्चे माइनस कर दिए, आपने जितना पैसा कमाया उसमें से जितने खर्च के माइनस करो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट. So basically it's your receipt और पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसी को बेसिकली अकाउंट्स बोलते हैं. उनका जो डिफरेंस हम निकालते हैं, मीन्स योर रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस निकालो, आइदर यू गेट प्रॉफिट और यू गेट लॉस. Then, as far as accounting is concerned, okay, accounting basically is the method which we learn, okay, in this subject. Accounting is the method to prepare the accounts. Okay, accounts means जो भी financial information है business की, उसको books में record करना. उसको कैसे record करना, उसका principle क्या, उसके rules क्या है, वो सब जो हम study करते हैं, उसी को हम बोलते हैं accounting. The accounting is the method or system, okay, which helps us to prepare the accounts. That's what we call accounting. So here accounting and bookkeeping are very much synonym, okay. That means you can use the word accounting or use the word bookkeeping. Bookkeeping means how you record the information in the books. That's what we call accounting and that's what we call bookkeeping. Keeping your book, okay, that means the financial informations recorded in the books, how to keep it. That's what we call bookkeeping. So bookkeeping and accounting are very much similar. Okay, let us move on. You have to understand, like science, which has certain rules, certain principles, certain theories, same way accounting also has its own rules and principles. Okay, you have to follow the rules and principles, then only you can prepare the account. If you don't follow, the accounting will be wrong. Okay, it is also an art also. If you use the rules and principles, it is called science. Okay, science what? Where certain rules and regulations are there, which are fixed, which are rigid, okay, which you have to follow. Same way in the accounts also, there are certain rules and regulations which you have to follow. Otherwise, accounts will be wrong. It is an art also. Art means how to present. Okay, you know, चटनी बनाना सबको आता है, लेकिन चटनी में सेम इंग्रेडिएंट ही डलता है. Most of the chutneys, okay, most of the chutneys में इंग्रेडिएंट लगभग सेम होते हैं, but the taste or the flavor varies. सबके टेस्ट फ्लेवर अलग होता है, क्योंकि कितना डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, it also matters. That's called art. सिमिलरली अकाउंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ओके, दैट इज एन आर्ट. So it is both an art and science. Okay, so preparing accounts using rules and regulation, that's science, and how to present it, that's called art. So it's both art and science. Then there are several international bodies and national bodies which are working together, okay, to make the accounting process more simple, more smooth. Okay, so that accounts all over the world have the same principle. वरना किसी और कंट्री में अलग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, इंडिया में अलग यूज कर रहे हैं, then there is a confusion. Okay, they will not understand our book and we will not understand their books. So a common standard is maintained all over the world. Principal rules same है, शायद लिखने का तरीका बदल सकता है. Okay. Next, accounting. Have a look at the definition. Okay, accounting definition. It is an art. I told you, no, it is an art. Art means how you do something. Okay. क्या करना है, that's a different thing, और कैसे उसको करना है, वो अलग चीज होता है. तो साइंस, there are principal rules, we all know that ये करना है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, that is called art. You know, मेहंदी, हाथों पे मेहंदी लगाओ, मेहंदी छप जाएगा, that's a science. लेकिन उस मेहंदी को कैसे अलग अलग डिजाइन में करना है, that is called art. तो उसी तरह से अकाउंट्स में आपको ये भी सीखना पड़ता है कि आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि वो ज्यादा वायबल हो, ज्यादा आसानी से समझ में आए. That's an art. It is an art of recording. हम अकाउंटिंग में सबसे पहले करते क्या है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. ओके, रिकॉर्ड करने का भी एक तरीका होता है, वो हम आगे सीखेंगे. That's an art of रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्लासीफाइंग, जो इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड की उसे क्लासीफाई करना पड़ता है. ओके, जैसे स्कूल में क्लासिफिकेशन, बॉयज इधर, गर्ल्स इधर, दैट्स अ क्लासिफिकेशन.
देन स्टैंडर्ड वाइज होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे उधर, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे उधर, ऑल आर स्टूडेंट्स बट वी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली अकाउंट्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, द सेल्स एक जगह पे रिकॉर्ड करने का, परचेज का ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड करने का, कैश ट्रांजैक्शन एक जगह पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन दूसरी जगह पे, एसेट्स के ट्रांजैक्शन, एसेट्स मींस द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, वो एक जगह पे, लायबिलिटी जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है उसे बोलते हैं लायबिलिटी, वो ट्रांजैक्शन एक जगह पे। तो इस तरीके आप ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, ओके, उन सबको समराइज करने का। से फॉर एग्जांपल सेल्स, अब सेल्स तो दिन में एक दुकान में 1000 कस्टमर आते हैं, 1000 सेल्स होते हैं, फिर दिन के एंड में बोलते हैं सेल्स कितना होता है, क्या करते हैं, जितना भी सेल्स है उसको एड अप करके बताते हैं कि भाई टोटल सेल्स इतना है, दैट्स कॉल्ड समराइजिंग। यानी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में प्रेजेंट करना, दैट्स कॉल्ड समराइजिंग। अकाउंट्स में जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, फिर उसे समराइज करते हैं, ओके, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मींस बड़ी इंफॉर्मेशन को बहुत छोटा कर देने का। एंड इन टर्म ऑफ मनी, याद रखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तभी रिकॉर्ड होती है अगर वो मनी के फॉर्म में है, ओके, इंफॉर्मेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ मनी दे आर ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देन ट्रांजैक्शन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, दे शुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बिजनेस को मॉनेटरीली इफेक्ट करे, पैसा आ रहा है, जा रहा है, या फ्यूचर में पैसा मिलेगा या फ्यूचर में आएगा, वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। नॉन फाइनेंशियल इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। से फॉर एग्जांपल स्कूल में टीचर आया तो स्कूल को उसको सैलरी पे करना पड़ेगा, सो इट विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स कि इतना सैलरी पे किया, लेकिन वो टीचर अच्छा है खराब है वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है, ओके, वो टीचर पढ़ाने में अच्छे हैं या खराब है या अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं या एफिशिएंट है या नहीं है, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि वो फाइनेंशियल नहीं, आप उसको मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कहा 1000 रुपया नो सारो मानस से, 2000 नो सारो मानस से, नो, हाँ, आप उसको कितना पे करो दैट कैन बी रिकॉर्डेड, ओके। नेचर एंड इंटरप्रेटिंग, ना इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मींस व्हाट, इंटरप्रेटिंग मींस आप उसमें से क्या समझ रहे हो, ओके, यू नो, आपका रिजल्ट आता है, एग्जाम में रिजल्ट आता है, फिर आप रिजल्ट में क्या करते हो, अपना पीआर देखते हो, पीआर क्यों देखते हो, वो आपको बताता है कि वेयर यू स्टैंड, आप अपने परसेंटेज देखते हो, पीआर देखते हो, ग्रेड देखते हो, ये सब चीजें आपको बताती है, और इसके ऊपर से आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि आपने कैसा परफॉर्म किया। फॉर सम स्टूडेंट इवन 50-60 पीआर इज वेरी गुड, फॉर सम इट इज नॉट सो गुड, तो ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, ओके। उसी तरीके से बिजनेस आप रन कर रहे हो तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई आपने पूरे साल बिजनेस रन किया तो लास्ट में क्या कंक्लूजन है, वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और यू आर अर्निंग लॉस, ओके, यू आर मेकिंग लॉस, ओके, योर प्रॉपर्टी इंक्रीजेज और नॉट, योर डेप्थ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये सब बिजनेस का इंटरप्रिटेशन है। तो ये हमको बता देगा बिजनेस कैसा रन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। So this is about the definition. One more definition is given by ACS, that is American Standard Council. मैं एक बार रीड कर देता हूँ। It is service activity. So why service? Account यानी आप information रिकॉर्ड करके किसी को दे रहे हो, तो you are providing a service to somebody. Its function is to provide quantitative information. ये quantitative information देता है, यानी वो information जो numbers पे figures में होता है, वो information देता है। Qualitative information नहीं मालूम पड़ता। मैंने कहा ना, आपके स्कूल में अगर कोई टीचर अच्छा आया तो कितना उसको पे कर रही है स्कूल, दैट विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन टीचर अच्छा खराब है, दैट्स अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। प्राइमरीली फाइनेंशियल नेचर, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, इकोनॉमिक एंटिटीज मींस जो इकोनॉमिकली है, ओके, यानी इकोनॉमी के अंदर जो बाइंग सेलिंग या उससे रिलेटेड है वो, दैट इज इंडीड टू बी यूजफुल इन मेकिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस को हेल्प करती है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में, भाई हमें फ्यूचर में सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्रेडिट पे गुड्स बेचना है नहीं बेचना है, कैश पे बेचना है, ओके, किसी को उधार देना तो कितना उधार देना है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारे तो बिजनेस डिसीजंस होते हैं, ये लेने में आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मदद करती है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक, सो देयर आर बेसिकली 7 कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर मेंशन्ड इन योर बुक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंशियल, बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है जो फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल मीन जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ओके, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो दोज इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सपोज आप कहीं होटल में गए, ओके, आपका स्टाफ है कहीं होटल में गया, वहां पे आपने खाना खाया, फिर उसका बिल आया, ओके, 1000 रुपया 2000 का बिल आया, दैट इज मॉनेटरी, उसको आप मनी में कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आप अपने घर पे भी रोज खाना खाते हो, लेकिन क्या आप उसे मनी में मेजर करते हो, उसका बिल आता है, मम्मी आपको बिल देती है नहीं देती है, so you cannot calculate in terms of money, so that's why it's not recorded in the books of accounts. So those transactions which are financial in nature, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ओके, वही इसमें आता है। जैसे मान लो
आपने किसी से कोई गुड्स खरीदा तो आपने उसको पेमेंट किया, दैट विल बी रिकॉर्डेड क्योंकि पैसा गया, ओके, मनी गया, पैसा गया और एसेट्स आया। लेकिन कोई अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर आपके बारे में अच्छा बोलता है, उससे भी बिजनेस को फायदा होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब सांदीपनि के बारे में कोई अच्छी चीज बोलते हैं तो उससे सांदीपनि का रेपुटेशन बढ़ता है, उससे इंस्टीट्यूशन को फायदा होता है। लेकिन क्या वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है? नहीं होता है, ओके, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर नहीं है। मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज इन अकाउंट्स, ओके, वी ऑल नो दैट अभी जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं सारे ट्रांजेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मनी होते हैं। दैट मींस व्हाट एवर द बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस, आइदर यू टेक द मनी और गिव द मनी, ओके। तो मनी में होते हैं, बार्टर सिस्टम की तरह नहीं है कि गुड्स के बदले गुड्स दिया। सपोज मेरे पास कोई चीज है, गेहूं है, वीट का, मैं फार्मर हूँ, वीट ग्रो करता हूँ, तो मेरे को वीट दे के बदले में फ्रिज लेना है, तो मैं दुकान पे जाकर वीट दे के फ्रिज नहीं ले सकता हूँ। मेरे को क्या करना पड़ेगा? अपने वीट को बेचना पड़ेगा, उसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, फिर वो पैसा मैं लेके जाऊंगा दुकान में, शॉपकीपर को पैसे दूंगा और बदले में उससे फ्रिज लूंगा। तो मनी एक्ट एज अ मीडियम एक्सचेंज, यहाँ पे बार्टर सिस्टम की तरह नहीं है, गुड्स के बदले गुड्स आपको मिल सके, ओके। नेक्स्ट, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस। क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, अलग अलग कैटेगरी से बांटने का भाई, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेल्स के ट्रांजेक्शन, परचेज के ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन, सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन, एसेट्स के ट्रांजेक्शन, एसेट्स यानी प्रॉपर्टी बिजनेस की, देन उसकी लाइबिलिटीज, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में आप ट्रांजेक्शन को बांट सकते हो, ओके। ये आपको हेल्प करता है बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में एक जगह पे रिकॉर्ड करने में। सपोज अगर कोई आपको पूछे पूरी साल कितना सेल्स हुआ, आप अकाउंट्स में देखोगे हर रोज अलग अलग बार सेल्स हुआ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हम कहते हैं क्या, दिन के एंड में जितना सेल्स होता है वो सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे लिखते हैं, ताकि कोई भी पूछे टोटल सेल्स कितना, तो हम टोटल सेल्स का फिगर आपको दे सकें। दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में करता है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। इंटरप्रिटेशन मीन्स आप उसमें से क्या समझ रहे हो, व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। यू आर रनिंग द बिजनेस, एक बिजनेसमैन पूरी साल बिजनेस रन करता है, उसको इंटरेस्ट होता है ये पता लगाने में कि मैंने जो बिजनेस रन किया उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग। आप पूरी साल पढ़ते हो, ओके, पूरी साल पढ़ने के बाद जब एग्जाम देते हो, सो यू आर एक्साइटेड टू गेट द रिजल्ट। व्हाई? योर रिजल्ट गिव्स एन इंटरप्रिटेशन अबाउट यू, हाउ यू परफॉर्म द होल ईयर। पूरी साल आपने जो भी किया उसका एक तरीके से कंक्लूजन आपको उस रिपोर्ट कार्ड में दिखता है, ओके। तो वो रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स देखते हैं और फिर उसके बेसिस पे वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं किया, कम पढ़ाई किया, ज्यादा पढ़ाई किया, व्हाटएवर, ओके। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स ऑलवेज गिव यू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। आपका रिपोर्ट कार्ड जो होता है एग्जाम के अंदर, वो आपको क्वांटिटेटिव, यार वो कितने नंबर्स हैं वो बताता है, आपके पास कितना नॉलेज है उसके बारे में ज्यादा नहीं बताता है। कई बार ऐसा होता है हमें नहीं आता तो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, शायद बाजू में कोई अच्छा स्टूडेंट आ गया, उसमें से देख के हमने लिखे और हमें अच्छे मार्क्स भी आ गए, तो मार्क्स अच्छे हैं, दैट्स अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या आपको उतना नॉलेज है? शायद नहीं है। तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिटेटिव नहीं देता है। सिमिलरली एक इंस्टीट्यूशन में भी जो फिगर्स होते हैं, कितना सेल्स परचेज हुआ, ये क्वांटिटेटिव फिगर देता है लेकिन क्वालिटेटिव नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है आपने गुड्स ज्यादा बेचा, you are able to sell more goods by fake advertisement, by false claims, okay, बड़ी बड़ी बातें की, वो टीवी में नहीं आता है कि आप ये खा लो तो आप पतले हो जाओगे, ये खा लो तो आपके बाल उग जाएंगे, ओके। ऐसे झूठे क्लेम आपने कर दिए, पब्लिक ने मान लिया, आपके गुड्स खरीद लिया, आपका सेल्स बढ़ गया, ओके। बट क्या वो पब्लिक सेटिस्फाई है? कुछ समय बाद पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि आपने झूठ बोला, फिर वो शायद आपसे लेने नहीं आएंगे। So they are not happy with you. If they are not happy, it's a qualitative thing which definitely इफेक्ट द बिजनेस। अगर कस्टमर ही खुश नहीं है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस को फ्यूचर में नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। लेकिन क्या आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते। हमने तो सेल्स किया वही रिकॉर्ड करते हैं। सो अकाउंट्स के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिसीजंस, ओके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करती है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। जैसे मान लो आपके फादर के पास मनी है, एक्सेस मनी है, सरप्लस आपके पास पड़ा है, आप चाहते हो उसे कहीं इन्वेस्ट करना, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे? कंपनी के अकाउंट्स आप देखोगे, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, लास्ट 5 ईयर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रिटर्न्स उन्होंने दिया, और उसके बेसिस से आप नक्की करोगे उसके शेयर्स खरीदने के नहीं करने। तो जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होते हैं वो बेसिकली अकाउंट्स के बेसिस पे होते हैं, ओके। से फॉर एग्जांपल अगर एक दुकान वाला भी किसी को उधार देता है, हर किसी को उधार नहीं देता है, कुछ लोगों को देता है, कुछ को नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने कई सालों से दुकान पे गुड्स ले रहे हो, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, तो कभी आपके पास पैसा नहीं है तो आपको उधार वो दे देगा, बिकॉज योर फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड, ओके। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप पैसा लोगों को पे नहीं करते हो, टाइम पे नहीं करते हो, या फिर कई लोगों को देते ही नहीं हो, ऐसे लोगों को आप
देखना वो दुकान पे उधार लेने जाएगा, दुकानदार नहीं देगा, तो वो जो इकोनॉमिक डिसीजन उसको लेना है कि इसको उधार देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो डिपेंड करता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन आपको मालूम कैसे पड़ेगी? बिकॉज ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को देख के आप बिजनेस के एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी, वो सारी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ते हैं। उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मेक ए डिसीजंस कि हमें उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हिस्टोरिकल इन नेचर होती है। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब क्या है? जो हो चुका है, क्योंकि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होते हैं जब वो ट्रांजैक्शन होते हैं, होने वाले इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। सपोज आपको कोई ऑर्डर मिला, आपको गुड्स के लिए एक ऑर्डर मिला कि भाई तुम्हारे 1 लाख यूनिट्स हमने सप्लाई करवाना चाहिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। ऑर्डर मिला, ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन जब आप गुड्स उनको दे दोगे, ओके, तब रिकॉर्ड होगा। सो व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस देन ओनली इट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बताता है, अकाउंट्स आपको वो चीज बताता है जो हो चुकी है। ओके, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद बुक्स में रिकॉर्ड होता है, उससे पहले नहीं होता है। इसलिए आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है, मींस पास्ट में क्या क्या हो चुका है वो इन्फॉर्मेशन देता है। ऑब्वियसली पास्ट इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करती है फ्यूचर में डिसीजंस लेने में। ओके, सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। टिल देन गुड बाय।